Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai Shri Vanita ki jai Jagat Guru Shri Prabhupada ki jai Hare Krishna. Welcome to your aspiring sadhaka sessions. Belong to a group called सेवका और आपका अगला एग्जाम का पेपर का नाम है साधका जो आप लिखेंगे अगस्त में व्यास पूजा के अगले दिन. सो फॉर विच जिसके लिए हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर विच वी आर प्रिपेयरिंग नाउ. So we'll call our group, continue to call our group with a single term, aspiring sadhaka. So अब तक हमने 4 सत्र कंप्लीट किया है. आज हम अ, 5वीं सत्र की ओर जा रहे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एट दिस लेवल वी वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो like always request all the people who are attending Srila Prabhupada Ashraya courses should keep their videos on and that should be a part of the discussion. अब अपना वीडियोस को ऑन कीजिए और प्लीज बी ए पार्ट ऑफ द सेशन. तो जो भी आएगा जो भी लॉगिन करने वाला है उससे दरख्वास्त है जो भी आ चुके हैं कि आप अपने जूम वीडियो को ऑन कीजिए. सो टुडे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गुरु इश्यू. तो ये 2 भाग में हम डिस्कस करेंगे. इसका में एक इश्यू चल रहा है जिसका नाम है गुरु इश्यू. यस गुरु. हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे. सो वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. तो इस लेवल में आपको पार्ट 1 के बारे में बताएंगे और जब आप अगले लेवल पे जाएंगे आपको पार्ट 2 के बारे में हम बताएंगे. सो व्हाट इज दिस गुरु इश्यू गोइंग ऑन इन ISKCON और श्रील प्रभुपाद प्लान फॉर सक्सेशन इन ISKCON. प्रभुपाद जी का क्या प्लान था और पोस्ट 1977 स्टोरी. तो 1977 में जब श्रील प्रभुपाद ने अपने प्राकट्य लीला को वाइंड अप किया उसके बाद प्रभुपाद के डिसअपीयरेंस के बाद क्या माहौल बना उनकी संस्था में. एंड द जुलाई 9th लेटर. तो the basis of Srila Prabhupada being considered as the current Acharya and the current Diksha Guru for ISKCON uh, by a method called as Ritvik method, which Prabhupada himself advocated. And it was in vogue when he was also present. So इसके बारे में हम समझेंगे कुछ. तो आगे बढ़ेंगे. What is Guru issue in ISKCON? After the departure of Srila Prabhupada, तो गुरु इश्यू क्या है ISKCON में. तो श्रीला प्रभुपाद का प्राकट्य लीला जब उन्होंने खत्म किया November 14, 1977 में इस ISKCON वृंदावन में. It has been questioned who would succeed the founder and the spiritual master of ISKCON. इसका थोड़ा एनलार्ज करूंगा ताकि आप देख सको. और डिसेबल द
videos of other participants, and only therefore my video is seen. That is, there are no distractions. So so it has been questioned who would succeed the founder and spiritual master of ISKCON. तो कौन श्रीला प्रभुपाद जी का सब ये जो परंपरा है आगे बढ़ाएंगे, इसके ऊपर एक सवाल आया था, क्योंकि हमारा तो परंपरागत आया हुआ सिस्टम है ना, आवर्स इज अ parampara based system. So just to give a brief on what this controversy is regarding surrounding the new gurus. So ISKCON that Srila Prabhupada built, a brief background. So 1965, age of 70, as Indian sannyasi, pure devotee of Lord Krishna, boarded the cargo ship Jaladuta, ये तो हम सब जानते हैं, to sail to America. तो अमेरिका जाने के लिए जलदूता जहाज, एक कार्गो शिप के टिकट से वो एक शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद जी, एक सन्यासी, वो कृष्ण भक्ति का आंदोलन को प्रचार करने के लिए वो पाश्चिमात्य देश जा रहे थे, अमेरिका जा रहे हैं। Neither did he have money to set out on such a journey. उनके पास धनराशि भी नहीं था। Nor did he know what to expect at his destination. और जब अमेरिका पहुंचेंगे वहां पे कैसा वो जीवन करेंगे ये भी उनको पता नहीं था। Now one thing he was sure is of his mission. तो लेकिन एक उनको पक्का पता था कि मेरा जीवन का लक्ष्य है मेरे गुरु भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर का जो आदेश है उसको परिपूर्ण करना। As instructed by his guru, the Srila Prabhupada ji took a gigantic step to present to the world the message of Bhagavad Gita and other Vedic scriptures. उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया जो दुनिया को भगवत गीता और भागवतम और अन्य वेद ग्रंथों का जो ज्ञान है वितरण करने के लिए। So Prabhupada ji embarked on a monumental historic service to God and mankind. तो मानव कल्याण के लिए और भक्ति दैव भक्ति में, शुद्ध दैव भक्ति में वो कार्य निरत हुए। In 1966 July, he established ISKCON, International Society for Krishna Consciousness in New York City. तो इनका स्थापना, ISKCON का स्थापना 1966 में प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क सिटी में उसको इनकॉर्पोरेट किया और अगले 10 साल में, नेक्स्ट 10 years, relentlessly work towards this mission. तो ये अपने गुरु के ये जो आदेश था उनके लिए उसको परिपूर्ण करने के लिए, सफल करने के लिए वो अगले 10 साल श्रम किए। वहां तक तो उन्होंने श्रम किए। 1933 में उनका इनिशिएशन हुआ फॉर्मली और वहां से लेकर 1966 तक तो वो गुरु का आदेश पालन करते हुए ही कार्य कर रहे थे। अब उसको साक्षात्कार मतलब उसको एक रूप देने का समय आ गया। उन्होंने प्रारंभ किया ISKCON की स्थापना करके और फिर उस 10 साल में 11 साल में उन्होंने पूरे पृथ्वी का भ्रमण 14 बार किया। 14 times he circled around the globe. He established 108 कृष्णा टेम्पल्स, 108 कृष्ण मंदिर का उन्होंने स्थापना किया। आज वो 600 से भी ज्यादा है दुनिया भर में और 70 से भी ज्यादा बुक का उन्होंने संकलन किया, एडिटेड एंड कंपाइल्ड फ्रॉम द Vedic Shastras, more than 70 books, and it guided a worldwide movement of over 10,000 Krishna conscious devotees from all continents of the world. तो दुनिया में इस पृथ्वी में जो भी खंड है वहां सब उनका शिष्य थे। तो कम से कम 10,000 शिष्यों का ये जो संगठन था उस समय, उन्होंने एक मतलब सिंगल हैंडेडली उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज है उसको अपने शिष्यों को देने के लिए
उन्होंने एक गवर्निंग बॉडी कमीशन भी बनाया, जिसके जरिए इस्कॉन का आडलित और जो चलन वलन है वो उसको आगे बढ़ाना था। ये उनकी इच्छा थी। जीबीसी बन के फिर जीबीसी गवर्निंग बॉडी कमीशन से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, गाइडलाइंस होगा, और फिर लोकली टेम्पल्स, टेम्पल प्रेसिडेंट्स और फिर उनके सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट्स और वहाँ के भक्त उसको मैनेज करेंगे। ये प्रभुपाद जी के इस्कॉन के लिए एक ओवरव्यू था, ये उनकी इच्छा थी। So when Srila Prabhupada departed November 14, 1977, Vrindavan, ISKCON मंदिर में, the world lost a glorious soul and a genuine spiritual leader. तो जब वो अपने प्राकट्य लीला को समाप्त किए तो दुनिया को ऐसे लगा कि एक महान आत्मा वो खो दिए और एक आध्यात्मिक गुरु का जो मार्गदर्शन था वो स्थगित हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि वैष्णवास नेवर डाई, आई शैल नेवर डाई, कभी मरूंगा नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ज्यादा तब मैं आपके साथ कैसे रहूंगा? हाउ विल आई बी विथ यू ऑलवेज? आई बी विथ यू थ्रू द मीडियम ऑफ माई बुक्स, माई इंस्ट्रक्शंस। तो गुरु का देह वटु और गुरु का वाणी, इन दोनों में से भारी है गुरु का वाणी। तो गुरु का वाणी का आदेश का पालन करना ही एक शिष्य का एकमात्र जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि शिल प्रभुपाद ने एक वाक्य जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने पहले मीटिंग में ही उनको बोल दिया था, उसको उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य मान लिया और उसको साधने में वो पूरा जीवन बिता दिए। तो शिला प्रभुपाद प्लान फॉर सक्सेशन, तो मैंने आपको ब्रीफ तो दे दिया है, तो ऑफिशियली हम पढ़ेंगे। तो तो वन हु तो प्रश्न तो यही उठेगा, प्रभुपाद के बाद कौन है? तो इस सब के लिए प्रभुपाद जी ऑलरेडी व्यवस्था बना चुके थे। प्रभुपाद टीचिंग अबाउट गुरु एंड आचार्य। गुरु मस्ट बी सिचुएटेड ऑन द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। किसी को अगर प्रभुपाद जी ने तो बोला था मैं चाहता हूं कि मेरे सारे शिष्य गुरु बने, कि इसका मतलब यही है कि तो अच्छा प्रभुपाद जी अभी चार है तो सारे शिष्य को हम गुरु बनाएंगे? उसके लिए क्वालिफिकेशन होता है, उसके लिए एक बेस लाइन होता है, और बेस लाइन प्रभुपाद जी ने खुद दिया है। उनकी इच्छा थी, he had a desire that all of his disciples should become gurus, but not without qualification. उसके लिए कम से कम कनिष्ठ एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या था वो? मोस्ट सिग्निफिकेंट लेसन इज थॉट वाज दैट गुरु मस्ट बी सिचुएटेड ऑन द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। गुरु मतलब वो भक्ति का पराकाष्ठ उस स्तर पे होना चाहिए। इस बिहेवियर मस्ट बी एग्जेम्पलरी। उसका जो जीवन शैली है वो एक उदाहरण बनना चाहिए बाकी लोगों को, ये गुरु के लिए। देर आर थ्री क्लासेस ऑफ डिवोटीज एंड द गुरु मस्ट बी एक्सेप्टेड एज टॉप मोस्ट। तो तीन तरह के भक्त होते हैं, उनमें से उमदा भक्त, ऊंचे स्तर का भक्त, टॉप क्लास डिवोटी, वो गुरु बनने के लायक है। इसका मतलब ये नहीं है जो भी वो उस स्तर पे सबको गुरु बनना है। तो गुरु बनने का और भी नियम है। व्हाट इज द नियम? द करंट आचार्य शुड अपॉइंट अ गुरु। ऐसा नहीं कि वोटिंग करके गुरु बनेगा, पब्लिक चॉइस से गुरु बनेगा। तो वो तो पब्लिक चॉइस हो गया, डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रहा है। तो गुरु बनेगा कोई भी मठ का, कोई भी संस्था का, आध्यात्मिक संस्था का, वो गुरु के आदेश से ही अगला गुरु को नियमित किया जाए। दैट इज डिसिप्लिन सक्सेशन। सो द कंक्लूजन इज दैट एन एम्पावर्ड स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑथराइज्ड बाय कृष्ण। और जो कृष्ण का शक्ति, कृष्ण शक्ति बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता। कृष्ण के आशीर्वाद के बिना कोई भी प्रचार नहीं कर सकता भक्ति का प्रचार। सो नोबडी कैन preach unless he is empowered by Krishna. It is recommended herewith that all acharyas be given highest respect. और ऐसे आचार्य को मतलब अ, सबसे जो ऊंचा गौरव है वो हमें देना चाहिए। इनफैक्ट प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का
जो गुरु अष्टक है उसमें से हमेशा कोट करते हैं, साक्षात हरित्वेण, तो साक्षात हरि की तरह गुरु को देखना चाहिए और उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। लेकिन गुरु को कभी अपने आप को कृष्णा नहीं समझना चाहिए, ये उनका क्वालिटी है। तो गुरु मस्ट ऑलवेज थिंक हिमसेल्फ एज अ सर्वेंट, मीनियल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो ये इनका क्वालिटी है, हमेशा वो किसी से सेवा लेने की इच्छुक नहीं है, वो हमेशा कृष्ण का दास बन के रहना चाहते हैं। स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट बी लिबरेटेड, मतलब आप सोचिए क्या स्थान मान होना चाहिए एक गुरु का। Therefore, one is strictly forbidden to think that the acharya is an ordinary being. तो एक आचार्य गुरु नरमति, गुरुषु नरमति, to think that a guru is ordinary person is a big offense. Or to think that somebody can become guru by voting, और गुरु चला गया अब मैं खुद बन सकता हूँ अपने बलबूते पे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। If I can satisfy my spiritual master, I can understand that Krishna is satisfied. अगर गुरु गुरु संतुष्ट हो गए तो कृष्णा संतुष्ट है, ये हमें जानना चाहिए। तो ये एक आचार्य का पोजीशन है। तो आप सोचिए क्या पोजीशन है ये। लेकिन इस्कॉन में क्या हुआ 1977 के बाद, तो कृष्ण प्रभुपाद ने एक प्लान बना के दिया था, वो सक्सेशन प्लान, उनके अंतर्धान होने के बाद। तो सीनियर डिसाइपल्स उस समय 77 में जो 30 साल के, 20 से 30 साल के अंदर थे वो, कुछ लोग सन्यासी भी, सन्यास धारण भी कर चुके थे प्रभुपाद की आदेश से। वरना प्रभुपाद जी ने तो ये बोल दिया कि सन्यास बनना वर्जित है। तो लेकिन उन्होंने सन्यास दीक्षा दिया क्योंकि वो एम्पावर्ड है, वो दे सकते, वो शक्ति दे सकते। So Prabhupada was fully aware that the disciples did not possess spiritual qualification to be raised to the position of guru. प्रभुपाद जी को ये भली बात ही ज्ञात था कि उनके शिष्यों में ऐसा कोई नहीं है जो अब गुरु बनने के लायक है। तो अच्छे भक्त हैं, दे आर गुड डिवोटीज, दे आर गुड डिसाइपल्स, दे आर नॉट गुड एनफ टू बिकम गुरु। तो प्रभुपाद ने इसके लिए क्या व्यवस्था किया, तो ये जानते हुए प्रभुपाद, गुरु कैन बिकम गुरु व्हेन ही इज ऑर्डर्ड बाय हिज गुरु, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से बहुत बार उन्होंने बताया। अगर तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभुपाद जी अगर किसी को बोलते कि तुम गुरु बन जाओ, नेक्स्ट मेरे बाद तुम गुरु हो, तब वो गुरु बनता। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे कभी नहीं कहा। वैसे कि हालांकि प्रभुपाद जी ने हमेशा ये इच्छा व्यक्त किया कि आई वॉन्ट ऑल माई डिसाइपल्स टू बिकम गुरुस, मतलब ये his desire was, or he wanted all his disciples to come to that stage, इतने शुद्ध भक्त बनना, बनना है उनको, वो उनका इच्छा थी। It was Prabhupada's desire that he wanted all his devotees, all his disciples to become gurus. But he also at the same time meant that he wanted all his disciples to have that qualities which is meant for a guru. Already we have read what those qualities are. तो सेल्फ मेड गुरु कैनॉट बी गुरु, ये प्रभुपाद जी खुद बोल चुके, मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय बोनाफाइड गुरु। तो ऐसा कोई आदेश नहीं है इस्कॉन में जहां पे इस प्रभुपाद ने किसी को, किसी एक व्यक्ति को बोला गया हो कि आप मेरे बाद गुरु बने। उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, क्या सिस्टम है अभी हम जानेंगे। द मेडिकल प्रैक्टिशनर कैनॉट बिकम सेल्फ मेड, एक डॉक्टर अपने आप डॉक्टर नहीं बनेगा। ऐसे ये नहीं बोल सकता आप स्टडीड ऑल मेडिकल बुक्स, मेरे घर में सारे जो वैद्यकीय पुस्तकें मैं घर लेके आ गया था और मैंने 4 साल उसको पढ़ा, अब मैं भी डॉक्टर। ऐसे डॉक्टर के पास क्या हम जाएंगे? विल वी गो टू सच ए डॉक्टर? इज ही अ डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल? नो। सो सो उसको मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए, वहां पे प्रोफेसर्स का इंस्ट्रक्शन सुनना चाहिए, वहां पे प्रैक्टिकल्स करना चाहिए, तत्पश्चात कॉन्वोकेशन होगा, तब एक एग्जाम होगा, उसमें उत्तीर्ण होगा, एक होना है, यू हैव टू पास द क्वालिफाइंग एग्जाम,
then you must attend the convocation and receive your degree certificate आपके हाउस सर्जनशिप के बाद। तत्पश्चात आपको प्रैक्टिस करने का अनुमति मिलेगा कि आप अभी एक सर्टिफाइड डॉक्टर हो, आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बोलेगा विश्वविद्यालय जाके, वैद्य के विश्वविद्यालय जाके, मैं तो आपके कॉलेज में आया नहीं लेकिन मैं घर बैठ के पढ़ रहा, तो जैसे कि आपका करिकुलम है ठीक वैसे ही मैंने पढ़ा, फिर भी वो डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बिकॉज इज नॉट गॉन थ्रू द प्रोसेस। गुरु कैनॉट बी सेल्फ मेड अप। ऐसा कोई ऐसा उदाहरण नहीं है पूरे मानव जो इतिहास है उसमें, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां पे एक गुरु अपने आप को गुरु मानते हुए गुरु बन गया। So under these circumstances for performing initiation giving दीक्षा, तो अब कोई गुरु बनने के लायक तो था नहीं, nobody was qualified enough to become गुरु। तो लेकिन प्रभुपाद जी को अपना संस्था को आगे बढ़ाना था, उनके बाद भी, उनके ध्येय के बाद भी, तो उन्होंने अपनी वाणी को छोड़ा, अपने सारे इंस्ट्रक्शंस को किताबों में उन्होंने कैप्चर किया। He captured all the instructions in the books, in his letters, and in his conversations. And he said, "There's nothing more for me to tell you." उन्होंने बोल दिया तो जो भी मुझे बोलना है मैंने सारी अपनी किताबों में बोल दी, तो मुझे और कहने की कुछ जरूरत नहीं है। और इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुरु। जब प्रभुपाद जी भी थे तो वो एक जगह 2-3 दिन के ज्यादा नहीं रुकते थे, कुछ जगह पे 1-2 महीने रुक गए, लेकिन वो हमेशा भ्रमण 14 बार पृथ्वी का भ्रमण 10 साल में, मतलब वो कहाँ पे टिकते, हर जगह एक दो दो जगह 2 दिन रहते तो फिर दूसरी जगह निकल जाते, और जब वो तीसरी जगह जाते तो पहली जगह किसी को दीक्षा लेना था, क्या करना था, तो व्हाट शुड दे हैव डन, इन द पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस शुड हैव टेकन दिस। सो प्रभुपाद एट दैट टाइम आल्सो हैड अ सिस्टम दैट द इनिशिएटिंग डेट्स वुड बी सेंट टू हिम। तो जो जो माला था दीक्षा का, दीक्षा देने के लिए, वो माला उनको जहाँ पे है वहां पहुंचाया जाता था, उस माला पे वो जपा करते थे, फिर एक आध्यात्मिक नाम उसको देते थे, फिर उसको पोस्ट के जरिए बेचते थे, और फिर वो शिष्य अपना प्रभुपाद जी के शिष्य बन जाते। तो ये मतलब इन हिज एब्सेंस ऑल्सो दिस वाज हैपनिंग। देन प्रभुपाद जी इतने बिजी हो गए कि वो भी नामुमकिन होने लगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला था लोकल टेम्पल प्रेसिडेंट्स को, सीनियर सन्यासीज को, आप कोई भी नाम चूज कीजिए और रेकमेंड कीजिए और मेरे तक पहुंचाइए और मैं उसको पास कर दूंगा, और मुझे कुछ मॉडिफाई करना है तो मैं करूंगा। और आप मेरे बिहाफ, ऑन माई बिहाफ, आप एक प्रिस्ट बन के, गोता बन के, ऑफिशिएटिंग आचार्य बन के, ऋत्विक बन के, बिकमिंग एन ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट, ऋत्विक, you can give initiation to the aspiring devotee, and the initiated disciple will become my disciple। तो मेरे बिहाफ आप दे रहे हो एक प्रीस्ट बनने के लिए। एक प्रीस्ट के मतलब जैसे कि हमारे घर में यज्ञ होम होता है, हम कोई मंत्र तो जानते नहीं है, तो हम प्रीस्ट को बुलाते हैं। तो प्रीस्ट क्या बोलता है, प्रीस्ट भगवान से अनुमति मांगता है कि ये यजमान है, ये अपने सारे ये कार्य, संपूर्ण कार्य करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है, और मैं यहाँ पे ऋत्विक बन के उनके स्थान पे बैठ के मैं इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा, इसका जो भी प्रतिफल है उसको मिलना चाहिए। तो ठीक वैसे ही ऑफिशिएटिंग आचार्य मतलब वो जो दीक्षा देता था गुरु को, शिष्य को, वो शिष्य किसका बनते थे, प्रभुपाद जी का। तो वो सिस्टम तब भी था जब श्रील प्रभुपाद जी थे, और वही सिस्टम वो आगे बढ़ाना चाहते थे। तो जीबीसी, एक जीबीसी फॉर्म किया जो 11 सन्यासियों को लेकर उन्होंने फॉर्म किया, और उस 11 सन्यासी को बोला कि आपको ऋत्विक आधारित अ, दीक्षा देना चाहिए, और जो भी आप दीक्षा देंगे वो सारे मेरे शिष्य बनेंगे। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से जुलाई 9 लेटर में मुद्रित है, प्रभुपाद जी का साइन इन। तो प्रभुपाद जी का ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मास्टर स्ट्रोक था। तो संस्था भी चलेगा, सारे भक्त सन्यासी भी व्यस्त रहेंगे, और संस्था का ग्रोथ भी होगा, तो नए
नए शिष्य आएंगे, उनका दीक्षा देना है, तो उनको देने के लिए कोई व्यवस्था होना चाहिए। सो जुलाई 9 लेटर 1977, अगर आप टाइप करेंगे गूगल पे, आपको ये लेटर मिल जाएगा। तो किसी को आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप ये टाइप कीजिए, जुलाई 9 1977 शीला प्रभुपाद लेटर, आपको ये लेटर मिलेगा। तो उसका क्या ब्रीफ क्या था, कि शिला प्रभुपाद ने ऋत्विक आचार्यों का नियमित नामांकन किया, और उनको बोला था कि ऋत्विक तरीके से वो प्रभुपाद जी का शिष्य को बनाते रहेंगे। फिर कोई भी सेल्फ मेड गुरु नहीं होगा, अपने आप को कोई गुरु डिक्लेयर नहीं कर सकता शास्त्र प्रमाण के विरुद्ध। तो और एक गुरु का वपु का जो प्रेजेंस है, ठीक है, इट इज वंदनीय, ऑल ग्लोरीज एंड ऑल रेस्पेक्ट, बट Prabhupada gave more importance to वाणी। सेट गुरु के समक्ष, एक गुरु के ऊपर एक क्या बोलते हैं, खटमल भी बैठ सकता है, खून चूस सकता है, क्योंकि वो गुरु के ऊपर बैठ गया, क्या वो भी गुरु है? गुरु के पास है तो एक अच्छा भक्त है? नो। जो दूर रह के भी गुरु का आदेश का पालन करता है, वही सच्चा शिष्य है। और प्रभुपाद जी हमसे दूर कभी गए नहीं, वो उन्होंने खुद बोला है, आई नेवर डाई, आई लिव थ्रू माई इंस्ट्रक्शंस, माई बुक्स। तो जब भी हम प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ेंगे, जब भी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आज डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हमेशा डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे सारे डिस्कशंस, ऑल आवर डिस्कशंस आर बेस्ड ऑन श्रीला प्रभुपाद बुक्स। लेकिन 1977 के बाद क्या हुआ, प्रभुपाद जी नहीं रहे, और कच्चे कच्चे डिवोटीज थे। जब तक प्रभुपाद जी थे, बांध के रखे थे उनको, तो उन्होंने एम्पावर कर दिया था, उनके शक्ति के आधार पे उनका भी मतलब आध्यात्मिक प्रगति हो रहा था। जिस दिन जब से वो गए, मतलब फिजिकली गए नहीं कहीं, फिजिकली जब वो अंतर्धान हो गए, उनका प्राकृतिक लीला को उन्होंने फाइंड अप कर दिया, तब से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। जो लेटर था उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, और आचार्य पीठ पे बैठने के लिए किसको बैठना है, ये तो वाद विवाद हुआ। फिर सारे जो ऋत्विक आचार्य को नामांकन जो किया था प्रभुपाद ने, तो ऑल दोज अपॉइंटेड 11 आचार्य डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज द नेक्स्ट सक्सीडिंग आचार्यस, ऑल 11 ऑफ अस आर गोइंग टू बी आचार्यस। तत्पश्चात बहुत कुछ बना। फिर आजकल तो 100 से भी ज्यादा गुरु हैं, अनेक सन्यासी हैं, जिसका प्रभुपाद जी ने अनुमति नहीं दिया था, मतलब नॉट इन मास स्केल। Anyway, let's not go into details of that. That is their issue. What is relevant for us is Prabhupada's order. Prabhupada has given us the specific order. 1977, July 9th letter. And that is our all and all. उसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है इसके बारे में। दैट मीन दैट इज द फाइनल इंस्ट्रक्शन। तो हमें उसी को, उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, और वही सिस्टम फॉलो भी हो रहा था जब वो थे। सो फिर क्या हुआ, आचार्य पीठ पे ये लोग बैठ गए, तो दे जजमेंटेड द न्यू कमर्स टू वर्शिप, ऑनर, रेवर देम एज गुरु एंड आचार्य। तो उन्होंने अनुमति दिया, आदेश दिया, चाहे आप कुछ भी समझो, उनके शिष्यों को, जब जब वो अभी वो शिष्य बना बना रहे थे, तो उन सबको उन्होंने अपना शिष्य मान लिया, उनको दर्जा दिया, अपना शिष्य का दर्जा उन्होंने दिया, सारे सम्मान सम्मान और दान दक्षिणा उनसे उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो प्रभुपाद जी के सेवा में जाना चाहिए, प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद जी के अकाउंट में जाना चाहिए। लार्ज ऑर्नेट व्यासासनास, तो बड़े बड़े व्यासासनास अ, उनके लिए बनवा दिए गए आदेश के अनुसार। द न्यू एंट्रेंस दे इनिशिएटेड स्टार्टेड ऑफरिंग एलॉबरेट डेली पूजा टू देम। तो फिर उनका पूजा स्टार्ट हो गया, गुरु पूजा। तो वो बैठे गए अव्यसासन में, और उनका गुरु पूजा हो रहा है। गोपाल जी का भी एक दो बार ऐसे व्यासासन पे बैठ के गुरु पूजा हुआ था, तो वो उन्होंने देख लिया था। उनको भी एक लालसा था कि मैं भी ऐसे पूजा
प्रतिष्ठा लाभ उठा रहा है। प्रभुपाद जी अपने आप के लिए कोई लाभ नहीं उठाए, वो संस्था के लिए किए। सारे पैसे जितने भी मतलब करोड़ों करोड़ों रुपए उनकी संस्था में आए, सारे वो संस्था की आगे मतलब फॉर प्रोग्रेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ही यूटिलाइज इट। he always lived a simple life even till his end. He did not start wearing flashy clothes जैसे कि आजकल के कुछ नौजवान, या नौजवान नहीं, कुछ गुरुज हैं जो मतलब फ्लैशी फ्लैशी कपड़े पहनते हैं, फ्लैशी फ्लैशी बिहेवियर है। वेरी सिंपल लाइफ पापा जी का कंटिन्यू हुआ। साधु के ड्रेस में वो थे, साधु ही थे, पूरा जीवन वो साधु के जीवन ही बिताए, कभी वो भ्रष्ट नहीं हुए। ये बहुत सारे जो अपने आप को गुरु मान के उन्होंने छलांग मारा और गुरु दक्षिणा, गुरु का दर्जा स्वीकार करते हुए, गुरु पूजा स्वीकार करते हुए, बहुत सारे ऐसे आचार्यों का, आचार्य कह नहीं सकते, आचार्य वन हु लिव्स बाय एग्जाम्पल। तो द सो कॉल्ड गुरुज फेल डाउन। तो फिर ये हमारी बात मानने की जरूरत नहीं है, आप गूगल करिए 11 आचार्य, 11 आचार्यों का हिस्ट्री पढ़िए। हाँ, तो बहुतेक उनमें से पतन हो गया, इस्कॉन से चले गए, कुछ लोगों का मृत्यु हो गया, पतन भी हो गया और फिर बाद में मृत्यु भी हो गया। तो तो कभी आपने सुना नहीं होगा कि गुरु का पतन भी होता है। गुरु कैनॉट फॉल डाउन, इज ए प्योर डिवोटी। गुरुओं का पुरुषा गोलोक से आए हैं गुरु, कृष्णा के शक्त्यावेश अवतार है। तो इट्स नॉट ए जोक, कैनॉट बिकम गुरु बाई गेटिंग वोटेड। इट्स नॉट ए डेमोक्रेटिक सेटअप। वो एक है ना, वो क्या बोलते हैं, हमारा जो वोटिंग सिस्टम है, इलेक्शन सिस्टम, ऐसा नहीं होता। तो देर आर वेज, आध्यात्मिक जो हमारे संस्थाएं हैं, उनका चलन वलन का कुछ नियम होता। सो न्यू सेल्फ अपॉइंटेड आचार्य वैरुति, इनको पता चला कि 11 तो काम नहीं संभाल पाएंगे, बिकॉज उतना शक्ति तो था ही नहीं। प्रभुपाद जी अकेले 108 मंदिर, फिर बहुत सारे क्या फॉर्म कम्युनिटीज, फिर कुछ वैदिक स्कूल्स, फिर रथ यात्रा, मेंटेनेंस ऑफ ऑल दीज टेम्पल्स, वो सब पत्रों के माध्यम से वो शिक्षा देते थे और वो काम चल जाता। दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द गुरु। तो हम पूछ सकते थे तो वो गुरु अभी तो है, तो उनका पावर क्यों नहीं पास हुई? तो प्रभुपाद इज ऑलवेज रेडी टू एम्पावर अस, बट दे ऑल डिस्क्वालिफाइड देमसेल्व्स टू रिसीव इट। तो उनका जो दीक्षा पात्र था उसमें छेद हो गया, वो रिसीव नहीं कर पाए द पावर्स, बिकॉज ऑफ द अपराध जो उन्होंने किया। तो दे रिसीव्ड स्पेशल टाइटल्स, तो उनके लिए भी नाम विष्णुपादा, परमपादा, बहुत सारे पादा बन गए। सब लोग प्रभु पादा को भूल गए और अपने अपने पद पादा बन गए वो लोग। So this act of becoming acharyas or guru on their own was in direct violation of the principles laid down by Srila Prabhupada. तो प्रभुपाद जी ने इस सिस्टम का विरुद्ध मतलब बोल भी चुके थे। सेल्फ अपॉइंटेड आचार्यस, वोटेड इन आचार्यस, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। सो दीक्षा विधाना और गुरु बनने का विधान शास्त्र में है, और वही प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था कि यही फॉलो होगा। और जब उनका मतलब था कि अगर मुझे लगेगा कोई योग्य शिष्य है, मैं अपने आप बोलूंगा कि ये मेरा सक्सेसर है। कोई नहीं है तो इसलिए तो जीबीसी बनाया, और जीबीसी वाज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ISKCON. They would give directions, spiritual guidelines. So they were considered better of the lot. So they would give spiritual guidelines from the teachings of Srila Prabhupada, not whatever they thought of. And administratively, they would uh, help the temple presidents and the local bodies to run the temples and to grow the congregation into nice initiated disciples, and to also make new brahmachari devotees, and to probably also give sannyas to a few very deserving um, devotees
if they ever were. So thousands of disciples of Srila Prabhupada in ISKCON temples all over the world who witnessed this deviation opposed the act of disobedience. तो लाखों लोग उसका अपोज भी किए और जो लोग उनको अपोज किए उनको बर्खास्त किया गया, उनको साइडलाइन किया गया, उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। ये सब हुआ। जो मद जो पावर के मद में थे, जो 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 ऐश्वर्य के बीच में मदान्ध हो गए थे, तो उन लोगों ने ऐसे कार्य भी किया जिन्होंने बहुत सारे डिसाइपल्स को या फॉलोअर्स को इस्कॉन से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया। Hundreds of innocent souls, the other kind, fell into the trap of the self-appointed gurus. या तो हमारे शिष्य बनो या अपना रास्ता नापो, ये उनका रूल था, माई वे और हाईवे। तो so over the years many of these self-proclaimed gurus have deviated from spiritual path, जो मतलब शोचनीय है और मतलब it is not at all acceptable. Guru cannot deviate. Guru is empowered by Krishna, so he cannot deviate. So we're saddened to say that ये सब अनफॉर्चुनेट एक्ट्स हुआ है और ऐसे गुरु इलिसिट कनेक्शंस भी बना के बैठे हैं औरतों के साथ, अपने ही शिष्यों के साथ। फिर ड्रग्स के साथ उनका संपर्क फिर से हो गया। फिर कुछ लोग जो ग्राम या कपड़े थे वो भी पहनने लगे, टी शर्ट, पैंट, बरमोडास। ये भी एक मतलब दौर आया। सो डिसाइपल्स, तो जो बाकी जो सच्चे डिसाइपल्स थे दे वर लेफ्ट कंफ्यूज्ड, हेल्पलेस एंड एंग्री। गुस्सा हो गए थे। एंड द सर्वाइवर गुरुस कंटिन्यू टू डॉजेडली कन्विंस द फॉलोअर्स रिमेन फेथफुल टू द फ्लॉड गुरु सिस्टम। तो ये आजकल जो चल रहा है बाकी इस्कॉन मंदिरों में, अनफॉर्चुनेट। लेकिन हमें इस मकाम पे आपको ये विषय बताना पड़ेगा क्योंकि आप सब तैयारी कर रहे हैं गोपा जी के शिष्य बनने का, ऋत्विक आधारित एक क्या बोलते हैं सिस्टम से। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दैट सिस्टम एंड व्हाट इज दिस सिस्टम। सो इन द सिस्टम दैट यू आर गोइंग टू फॉलो, द टेम्पल प्रेसिडेंट विल रिकमेंड नेम्स, द प्रीचर्स विल रिकमेंड नेम्स ऑफ हु शुड गेट इनिशिएटेड, एंड उसके लिए एक प्रोसेस होगा, एक एजुकेशनल प्रोसेस होगा। जैसे कि हमारा शीला प्रभुपादा आश्रय प्रोग्राम है जिनका आप भागी हो, जो आप अभी इस स्तर पे पहुंचे हो, तो आपका और स्तर है। तो वो उत्तीर्ण होते होते बाय पासिंग दोस लेवल्स फ्रॉम द स्टेज ऑफ टेकिंग हरिनाम दीक्षा, एंड आफ्टर टेकिंग हरिनाम दीक्षा यू विल बिकम disciple of Srila Prabhupada and no one else. If there is anybody even in our temple telling you that मैं आपका गुरु हूं, तो उसको मानिए मत। तो शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते, शिक्षा गुरु बन सकते, तो एक नहीं 100 बनाओ, 1000 बनाओ, दीक्षा गुरु एक ही है। और हमारे संस्था में एक ही दीक्षा गुरु है, और वो है शीला प्रभुपाद, हु इज गोइंग टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट 10,000 years। उन्होंने खुद अपने पत्र में लिखा है, अपने एक घोषणा किया है कि अगले 10,000 साल तक वो इस्कॉन का दीक्षा गुरु आचार्य बन के बैठेंगे। ये गुरु जुलाई 9 लेटर है और उन सन्यासियों के नाम है जो ऋत्विक आचार्य का दर्जा उनको गोपा जी ने दिया था, और वही सिस्टम उनको कंटिन्यू करना था। सो गौड़िया मठ भी इसी के लिए फेल हो गया कि उसमें अंदर बहुत ही खचाखच हाथ हो गया, और वो भी फेल हो गया। अभी थोड़ा वो ठीक हो गया है, इट इज रिकवरिंग। सो होपफुली वन डे इस ऑल्सो